टीआरएस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के दौरान की गई तकरीर पर शदीद तनकीद की और कहा कि टीआरएस पर लगाए गए इल्जाम झूठ का परिंदा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए रियासत के 4 वज़रा टी हरीश राव, ई दयाकर राव, टी श्रीनिवास यादव और वी प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने गैर गलत एदाद व शुमार के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। हरीश राव ने कहा कि अमित शाह दरअसल झूठों के शाह हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला से कहा कि वो साबित करके दिखाएं कि मरकज ने रियासत की कौन से प्रोजेक्ट की माली मदद की है। मिशन भागीरथ में उसका अपना एक पैसा भी नहीं है। మీ లోకల్ బీజేపీ నాయకులకు చెప్పరా? ప్రజలందరూ టీవీలో చూడలేదా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఎల్బీ నగర్లో శంకుస్థాపన చేసిండ్రు, అల్వాల్లో శంకుస్థాపన చేసిండ్రు, ఎర్రగడ్డలో శంకుస్థాపన చేసిండ్రు, వరంగల్లో శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. నేను మొన్న వరంగల్ పోయినప్పుడు చూస్తే బ్రహ్మాండంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక అమిత్ షా గారు మాట్లాడతారు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు అయితలేవు. చెప్పిందే కొన్ని నెలల కింద శాంక్షన్ అయ్యి టెండర్ అవుతుంది, పనులు ప్రారంభమైనవి. ఇక నువ్వు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు కట్టలేరని అమిత్ షా మాట్లాడితే ఇంతకంటే అబద్ధం, పచ్చి అబద్ధం ఇంకోటి ఉంటుందా? ఇంకా ఇంత నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడతారు మీరు. దేశంలో 157 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఇస్తే తెలంగాణకు ఒక్క ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యలే కదా మీరు? ఒక్కటని ఇచ్చిందా తెలంగాణకు? ఒక్క కాలేజీ ఇవ్వకుండా తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిన పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. మీరా మాట్లాడేది? మీకు మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడిది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు ఇయ్యలేదు తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్? ఇవాళ తెలంగాణకు అన్యాయం చేసినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. మీరు ఏమీ ఇవ్వకపోయినా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 33 జిల్లాల్లో 33 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టాలని నిర్ణయించిన నాయకుడు కేసీఆర్. దేశానికే ఆదర్శంగా తెలంగాణను నిలిపిన నాయకుడు కేసీఆర్. మేం చెప్పడం కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్పింది. నేను అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతూ డబుల్ డెక్కర్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు. డబుల్ డెక్కర్ అంటే ఢిల్లీలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో బీజేపీ. నీ ఉత్తరప్రదేశ్లో డబుల్ డెక్కరే ఉన్నది కదా, మరెందుకు అభివృద్ధి అయితలేదు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లెక్కలు చెప్తున్నా నేను, నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన లెక్కలు చెప్తున్నా నేను. నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది నీతి ఆయోగ్? కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగే ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది. దేశంలో ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో పేదలకు వైద్యం ఎలా అందిస్తున్నారు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య సూచికలు విడుదల చేసింది. విడుదల చేస్తే తెలంగాణ దేశంలో అగ్రగామిగా ఉన్నది. దేశంలో తెలంగాణ 3వ స్థానంలో ఉన్నది. మరి డబుల్ డెక్కర్ గవర్నమెంట్ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ చిట్ట చివరి స్థానంలో ఉంది, లాస్ట్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ఎవరు? కేరళ. సెకండ్ ఎవరు? తమిళనాడు. థర్డ్ ఎవరు? తెలంగాణ. అంటే 3 చోట్ల బీజేపీ లేదు. మరి డబుల్ డెక్కర్ గవర్నమెంట్లన్నీ వెనుకకు పడ్డాయి. బీజేపీయేతర రాష్ట్రాలే వైద్యములో నంబర్ 1, 2, 3 స్థానంలో ఉన్నాయి. నీ డబుల్ డెక్కర్ గవర్నమెంట్ ఉన్న యూపీ లాస్ట్, చిట్ట చివరి స్థానం. అంటే ఇది కూడా అబద్ధమే కదా. డబుల్ డెక్కర్ గవర్నమెంట్ వస్తే వచ్చిన కాడేం అయితలేదు, రేపు ఈడ కూడా లుక్సాన్ అవుతుంది, జరగదు. సో అబద్ధం నంబర్ 3 ఏంటంటే ఆయుష్మాన్ భారత్లో తెలంగాణ చేరలేదు అని పచ్చి అబద్ధాన్ని వారు అమిత్ షా గారు నిన్న చెప్పారు. ఇది నిజమా కాదా? దీని మీద చర్చకు ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా అని నేను అడుగుతున్నా. साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना की सदर वाईएस शर्मिला ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर जबरदस्त वार करते हुए कहा कि अमित शाह ये बताने से क्यों कासिर रहे कि बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का जो वादा किया था उसे अब तक क्यों पूरा नहीं किया। मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के साथ लगातार नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। अमित शाह का दौरा हैदराबाद बेशर्मी की इंतहा है। रियासत के किसानों से धान नहीं खरीदा जा रहा है और परेशान है। बीजेपी हुकूमत में गरीबों, दलितों और अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा हुआ है। उन्होंने अक़लियतों के लिए मुख्तस 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने की बात पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला से कहा कि अगर वो किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे ऐसी मराहत छीन लेने का कोई हक भी नहीं है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे और ये कारनामा है। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और शेवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की क़यादत में टीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने बदंगापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर से बालापुर चौराहे तक एक एहतजाजी रैली निकाली और ज़बरदस्त धरना दिया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने महंगाई पर काबू
रंजीत रेड्डी ने कहा कि मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। ख़वातीन के मसाइब और तकालीफ में इजाफा हुआ है। ख़वातीन चाहती हैं कि हुकूमत गैस के चूल्हों की जगह अब लकड़ी के चूल्हे फराहम करे। सबिता इंद्रा रेड्डी ने मरकज़ की काबीना में शामिल ख़वातीन खासकर स्मृति ईरानी को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी जिस वक्त अपोजिशन में थी उसने गैस सिलेंडरों के साथ सड़कों पर उतर आकर कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया था, लेकिन अब गैस सिलेंडरों की कीमत 1000 से ज़्यादा हो गई है तो वो खामोश बैठी हुई हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना में कायम होने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों में रियासत के मुकामी नौजवानों के लिए 50% कोटा मुख्तस करने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कागज नगर की एक पेपर इंडस्ट्री में 2500 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, इनमें सिर्फ 200 का ताल्लुक तेलंगाना से। उन्होंने कहा कि हरियाणा हुकूमत ने हाल ही में ऐसा फैसला किया है जिसमें कहा कि बैरूनी कंपनियों में मकामी लोगों को 50% के तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि अक़लियतों को रोज़गार फराहम करने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि अक़लियतें खासकर मुसलमान टीआरएस और कांग्रेस दोनों से मायूस हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है 2000 एम्प्लॉइज़ का स्टाफ है इसमें, लेकिन उमन ये होता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो फैक्ट्रीज डालते, गवर्नमेंट उनको स्कीम्स देती, लाइट सब्सिडी पे देती, वाटर सब्सिडी पे देती, ज़मीन सब्सिडी पे देती, उनको लोन देती, इसलिए देती कि वहाँ के मुकामी लोगों को नौकरी देना बोल के, उनको डेवलप करना बोल के उनको। तो लेकिन जब यहाँ पता चला कि SPM पेपर मिल में कागज़ नगर यानी पूरे कोमराभीम डिस्ट्रिक्ट आसिफाबाद एंड कागज़ नगर एक कोमराभीम डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 200 एम्प्लॉइज़ है, बाकी के 2000 एम्प्लॉइज़ बाहर के हैं बोल के। तो ये बड़ा दुखद बात है ये मुकामी लोगों के लिए। तो यहाँ के जो MLA है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खैर उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, बेचारे बीजेपी के हैं। उन्होंने MLA से उम्मीद है कि MLA साहब तक हमारा कोई वीडियो ये पहुँचाए और ये पहुँचाने के बाद में जो है कि ये SPM मिल में कम से कम कागज़ नगर के 50% एम्प्लॉइज़ रहना, उससे कई चीज़ों का फ़ायदा है कि यहाँ पर रहेंगे, उन्हें आना जाने को भी सहूलत है, काम भी ज़्यादा करेंगे, उन्हें एरिया डेवलप होगा, उन्हें कमाएंगा। अब आप ला के बिहार के यूपी के लेबर को रखे तो तेलंगाना को क्या फ़ायदा है? उन्हें वन डे पैसे लेके वापस चले जा रहा। हमारे कोई नॉर्थ इंडिया के लोगों से कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है हमारी, हम जो है बहुत बड़े दिल के हम इंडिया के मुख्तलिफ मुकामात छोड़ दीजिए, हम दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग आए तो हम गोद ले लेते, हम सोमालिया वाला आया तो हम गोद ले लेते, हम जो भी आया उसको यहाँ रख लेते, खिलाते पिलाते हम। लेकिन जहाँ पर हमारे हुकूक़ की बात आ रही, मिनिमम 50% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन SPM पेपर मिल। पंचगुट्टा पुलिस ने मिठाई की मशहूर चेन स्टोर्स जी पुल्ला रेड्डी के पुत्र एकनाथ रेड्डी पर अपनी बीवी को जबरन कैद करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एकनाथ रेड्डी की बीवी प्रज्ञा रेड्डी की शिकायत पर उनके शौहर के खिलाफ जहेज के लिए हिरासत करने और घरेलू तशद्दुद का भी मुकदमा दर्ज किया है। प्रज्ञा रेड्डी ने बताया कि उनके शौहर एकनाथ रेड्डी ने झगड़े के बाद जुमे की रात उन्हें एक कमरे में जबरन बंद कर दिया और बाहर निकलने की इजाज़त तक नहीं दी। शहर के खांगी वीडियोग्राफर्स ने मेट्रो क्लासिक फंक्शन हॉल आरामगढ़ में शादी की एक तकरीब में अपने साथी इमरान पर हमला करने और उसे जख्मी करने के वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। बताया जाता है कि वीडियोग्राफी के दौरान एक लेडी फोटोग्राफर शकीला ने उन पर हमला किया। इमरान के साथियों ने पुलिस से हमलावर खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आज तकरीबन 10:30 पौने 11 के दरमियान में मेरे को फ़ोन आया इमरान के असिस्टेंट का, वाजिद का, भाई आप कहाँ हैं, इमरान भाई पे अटैक हुआ। अटैक होने का रीज़न क्या है बोलते वो बहज़म बेजी की फ़ोटोग्राफी के दौरान फंक्शन में हम लोग दूल्हे वाले, उन लोग दुल्हन वाले हैं, बहज़म बेजी हो गई। तो मैं जाके पार्टी वालों को बोल के कंप्रोमाइज़ करा रहा, बोलते हाँ भाई ये औरत ज़्यादा बहस कर रही है, औरत ही, तो ये वजह से इमरान भाई से बहस हुई, ये वजह से इमरान भाई से बहस हो गई ज़रा। लेकिन फ़िलहाल काम चल रहा अभी बोल के वाजिद बोले। फिर एक 15 मिनट वाजिद का फ़ोन आ रहा मेरे को, भाई कहाँ है, जल्दी आओ, इमरान भाई को मार दिए, खून जा रहा है, इमरान भाई बेहोश हो गए बोल के। मैं फौरी हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरान अनकॉन्शियस थे। डॉक्टर से बात करा तो डॉक्टर बोले इनका CT स्कैन कराओ, CT स्कैन कराने बाद मालूम करेंगे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, क्या हो रही, इमरान मतली हो रही, वॉमिटिंग आ रही बोले कंप्लेंट कर रहे थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं रह रहा कुछ भी। इमरान का ये कंप्लेंट था। खैर अभी इमरान का ट्रीटमेंट चल रहा हूँ, अभी अनकॉन्शियस है, बोल नहीं सकते कि उनकी तबीयत अब कब बेहतर होती क्या है। लेकिन इमरान भाई जो हरकत हुआ बिल्कुल गलत हरकत हुआ, यह नहीं होना था। फंक्शन हॉल में, फोटोग्राफी फील्ड में बहुत
गंदी चीज़ जो नहीं होना था हो गई है। वो लोग भी प्रोफेशनल है, हम लोग भी प्रोफेशनल, लेकिन प्रोफेशनलिज्म उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आउट ऑफ द प्रोफेशन जाकर काम करें। वो जो लेडी फोटोग्राफी है, शकीला फोटोग्राफी, सवाल भी ये झगड़ा हुआ किससे? जो शकीला फोटोग्राफी है, शकीला फोटोग्राफी की बेटी से इमरान की बहस हुई। उन्होंने अपने पाले हुए गुंडों को बुला के, दोस्तों को, भाई के दोस्तों को बुला के इमरान के ऊपर हमला कराया उन्होंने। करीब 10 से 15 लोग थे। मौजूद थे या उनको बाहर से बुलाए? नहीं, बाहर से फ़ोन करके बुलाया उन लोगों को। उनको बाहर से, ये आज का नहीं है, ये हमेशा का है। ये अगर कोई भी फंक्शन में बहस होती है तो अपने भाइयों के दोस्तों को बुला के उन्होंने वीडियोग्राफर पे हमला कराते हो। बारकस हैनान गुट्टे के एरिया के रहते उन्होंने लेके आके हम आज तो उन्होंने ओवर लिमिट क्रॉस कर दिए। मरते मरते इमरान की हालत, अब कंडीशन अनकॉन्शियस है बच्चा, क्या होता है क्या है अभी तक तो नहीं मालूम। लोगों का फंक्शन भी खराब हो गया। कब? अब लेडीज़ है भाई, लेडीज़ के ऊपर कौन वो करेंगे? जान दो, आज से जान दो, चलो छोड़ दो, लेडीज़ है ना, कौन बोलेंगे? लेडीज़ है ना भाई, जान दो, कर ले ना बोल के दिल बड़ा करके अनजान होते। लेकिन ये हरकत होती तो हमको अंदाजा नहीं था ऐसी होंगी हरकत करके। अभी हमला कितने लोग कर रहे हैं उनके ऊपर? 10 से 15 लोग थे। इमरान बोल रहे हैं ना, बहुत लोग थे, इमरान गिर गए बेहोश हो के, चारों तरफ से मारना पड़ रहे थे। उनके हस्बैंड इमरान गिरने के बाद इमरान के मुंह पे खुले पैरों से हस्बैंड कंप्लेंट लिखा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 24 आवर्स अनकॉन्शियस इमरान को रखना पड़ता। 24 से 48 घंटे के अंदर इनको ना वॉमिटिंग आना, ना इनको चक्कर आना। कंडीशन अभी नहीं मालूम, बाद में बोल सकते हो। डॉक्टर्स बोल रहे हैं राइंदा नगर PS में कंप्लेंट करके हम और इमरान की हालत क्रिटिकल, अभी MLC के लिए अभी क्रिटिकल है, अनकॉन्शियस है अभी। पुलिस वाले कुछ एक्शन ले रहे हैं? पुलिस वाले अभी पुलिस से रिक्वेस्ट है हम लोगों की, इसके ऊपर प्लीज़ अच्छा इंक्वायरी करके इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक्शन लेना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट ऑल द राइंदा नगर पुलिस SHO। कंप्लेंट कराने के बाद पुलिस भी एक्शन करेगी? नहीं, अभी तक तो पुलिस वाले नहीं आए अभी तक तो। विजयवाड़ा की पुलिस ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ मिलकर कृष्णा बैरेज में एक खातून को डूबने से बचाया। बताया जाता है कि खातून ज़हनी तनाव का शिकार थी और उसने दरिया कृष्णा में छलांग लगा दी। इस खातून को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। हिंदुस्तान के नायब सदर M वेंकैया नायडू इतवार को मुत्तहदा अरब इमारात के दौरे पर पहुंच गए, जहां वो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर हुकूमत हिंद की तरफ से ताज़ियत का इजहार करेंगे। इमारात के सदर शेख खलीफा का जुमे को इंतकाल हो गया था। इसी दौरान वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने दिल्ली में वाक़े मुत्तहदा अरब इमारात के सिफारत खाने में इमारात के सफ़ीर से मुलाकात की और अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने शेख खलीफा के इंतकाल पर एक दिन का शोक भी मनाया है। मुल्क में कोविड-19 के केसेस में पिछले दिनों के मुकाबले में 404 केसेस की कमी देखी गई। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि अलबत्ता गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 नई अमवात हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर एंड्रयू सैमंड की एक हादसे में मौत हो गई। 46 साला सैमंड हफ्ते की रात टाउन्सविल में एक हादसे से दो चार हो गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और उनके साथी क्रिकेटरों ने सैमंड की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। क्रिकेट के शायकीन के लिए ये दूसरा सदमा है। हाल ही में स्पिनर शान वर्ने की मौत हो गई थी। हिंदुस्तानी क्रिकेटरों ने भी सैमंड की अलमनाक हादसे में मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार मुजाहरे के जरिए उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप दिलाने में उनका कामयाब रोल रहा। वो IPL मैचेस में हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीमों के लिए भी खेल चुके हैं। डेक्कन चार्जर्स ने 2012 में पहली मरतबा उन्हें 5.4 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। पुराने शहर में लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को दो ग्रुपों में लफ्ज़ी झड़प और एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो जाने के बाद 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात को लेकर दोनों ग्रुपों में कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। आज मामला काफ़ी बिगड़ गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और एक समझौते के तहत उन्हें इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए राज़ी किया। पुलिस ने बताया कि कुछ देर के लिए इस इलाके में हालात कशीदा हो गए थे, लेकिन सूरत हाल काबू में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर हर हमला कश्मीर की रूह पर बराह रास्त हमला है। इन्होंने कहा कि कत्ल के वाक़यात में इजाफ़ा हुकूमत के इन दावों के बरअक्स है कि वादी में हालात मामूल पर हैं। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट
फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें पार्टी के अक़लियती सेल के नायब सदर अमित कौल की क़ियादत में कश्मीरी पंडितों के एक वफ़द से बातचीत के दौरान कही। आने वाले दिनों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तालीम में इस्लाहात की मुहिम तेज़ हो सकती है। बहुत से ज़ेर इल्तवा मामलात में भी पेश रफ्त देखने को मिलेगी, जैसे हायर और नेशनल HEKI एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तश्कील। वज़ीर आज़म NRF रिसर्च फाउंडेशन की हिदायत के बाद वज़ारत तालीम इस वक्त कौमी तालीमी पॉलिसी NEP से मुताल्लिक़ सिफारिशात पर तेज़ी से अमल दरामद में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में मुक़र्रर करदा अहदाफ़ में इस सिफारिशात पर 200 से ज़ायद मुताल्लिक़ तक़रीबन NEP साल अमल दरामद किया जाएगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क रियासत के बफेलो वाक़ एक सुपरमार्केट में एक बंदूक बरदार ने कम अज़ कम 10 लोगों को कत्ल कर दिया है। दी एसोसिएट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक बरदार ने राइफ़ल के साथ फ़ौजी कपड़े और जिस्म पर आर्मर पहन रखा था और सियाह फाम लोगों की अक्सरियत वाले इलाके के पड़ोस में वाक़ सुपरमार्केट में दाखिल होने के बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। इधर बफेलो पुलिस महकमे ने ट्वीट किया, शूटर को हिरासत में ले लिया गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज का पहला तरबियती इज्तिमा चारशुम्बा 18 मई को दिन के 10:30 बजे ता शाम 5 बजे हाई टेक गार्डन फंक्शन हॉल करीबी न्यू गोल नाका ब्रिज न्यू वाहिद नगर कॉलोनी ओल्ड मलकपेट बाजू A1 फंक्शन हॉल मुकर्रर है। मोहम्मद महमूद अली रियासती वज़ीर दाखिला मेहमान खुसूसी होंगे। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम सदारत करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी B शफ़ीउल्लाह IFS व दीगर सीनियर ओहदेदार शिरकत करेंगे। मजहबी स्कॉलर सफ़र हज, मनासिक हज व ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ अहम नुकात बयान करेंगे। हाफ़िज़ नईम की क़िरात कलाम पाक से तरबियती इज्तिमा का आगाज़ होगा। मौलाना मोहम्मद अंसार अनवर हुसामी शाकिर नात शरीफ का नजराना पेश करेंगे। मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया फ़ज़ाइल हज व उम्रे से मुताल्लिक़ बयान करेंगे। मौलाना सैयद इबाद ज़की क़ासिमी मुनासिक हज व उम्रा, जबकि हाफ़िज़ अब्दुल रशीद तल्हा नोमानी आदाब ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ बयान करेंगे।